Hello everyone, how are you all? My name is Abhishek and today I brought a new topic for you guys, that is haloalkanes and haloarenes. In this topic we will be discussing about some general introduction and the method of preparation of haloalkanes. Haloarenes will be discussed in later part. So let's begin. As you can guess by the name of haloalkane that these are derived from the alkanes by the replacement of one or more hydrogen atom corresponding to the halogen atom. So let's see what exactly it is. Uh, Suppose you have this carbon and this carbon has hydrogen like this. Once there is a removal of hydrogen and addition of an halogen is represented as an X. So this will be your CH3X. Now again, if you remove one more hydrogen and add one more X, this would be CH2X2. And if you remove one more hydrogen and add one more halogen, this will be CHX3, not CH3, CHX3. And if you remove further hydrogen, one more hydrogen, and add one more halogen, this will be CX4. Now there are no more hydrogen left for the replacement, so this reaction will be terminated here. I'm not writing the exact reaction, but I'm just telling you that how the replacement of hydrogen is taking place. Okay, the hydrogen are substituted by the halogens. Here X stands for halogen and these are fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are your halogens. Okay. As you can see here in this structure, the carbon is sp3 hybridized. In every structure, the hybridization of this carbon is sp3. So how we count the hybridization is the sum of all sigma bonds plus lone pair. So this is your hybridization. Okay, na? This is your hybridization. So everywhere the carbon is making single bond, that is sigma bond. So there are actually 4 sigma bonds in each of these structure. So its hybridization is sp3. Here also in sp3. Okay. If I talk about the classification, so the first classification goes on the number of halogen a haloalkane has. Suppose this halogen is having only one halogen atom, only one exists there. So this is called monohaloalkane or monoalkyl halide, you can say. Okay. This is your dialkyl halide or you can say dihaloalkane. This is your trihaloalkane. This is trihaloalkane and this is tetrahaloalkane. So the first classification is done here. There are further more classification which is based on the hybridization of carbon. If carbon is sp3, what all these structures can be formed, and if carbon is sp2 or carbon is sp3, which is attached with the halogen, how many type of alkyl halides can be formed? We will be talking about them also. Let's discuss few examples of monohaloalkane. One structure could be like this. Other structure could be like this, and another structure could be like this. This one is your primary haloalkane, this one is your secondary haloalkane, and this one is tertiary haloalkane. Why it is so? Because this carbon which is having halogen, it is surrounded by only one carbon from one side, and here it is surrounded by two different carbon, and this carbon is surrounded by three different carbon. Okay, so that is why this is primary, secondary and tertiary haloalkane. ठीक है ना? Next one is dihaloalkane. So one structure of dihaloalkane is like this. Means two halogens are occupied, or you can say two halogens are attached with only one carbon.
ठीक है, तो such type of haloalkane is called geminal dihalide. Geminal dihalide. Or sometimes short form we use its gem. क्वेश्चन में आपको शायद gem लिखा हुआ मिल सकता है. This is known by one more name called alkylidene. Alkylidene dihalide. और सिंपली यू कैन से alkylidene halide भी कभी कभी बोलते हैं. alkylidene halide कह दीजिए आप. ठीक है, इसी में एक और मेंबर आता है इन्हीं फैमिली में. सपोज एक हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा है कि एक एक्स यहां पे लगा हुआ है और एक एक्स यहां पे लगा हुआ है. सो दीज टू कार्बन्स आर एक्चुअली नेबर कार्बन. So as you can guess by the name, these halogens are attached with the neighbor carbon, so we call it vicinal dihalide. Vicinal dihalide. Or short form we use VIC. 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 And it is known by one more name called alkylene halide. Alkylene halide or alkylene dihalide. Alkylene halide है तो understood है कि there would be two halogens with the neighbor group. ठीक है ना, neighbor carbons पे. इसी तरीके से हमारा ट्राई हैलोएल्केन होता है. ट्राई stands for three halogens are attached. It means like this: CHCl3. We name it chloroform. ठीक है, CHBr3 bromoform. And one more important CHI3 iodoform. ठीक है ना, ये भी आपको अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा. सो दीज आर ट्राई हेलोएल्केन्स. ऐसे हमारे पास टेट्रा हेलोएल्केन भी होता है. ठीक है, CCl4 इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड. टेट्रा हेलोएल्केन भी है. पॉली हेलोएल्केन्स भी होता है, DDT जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोएल्केन on the basis of number of halogens attached with the parent chain. ठीक है ना. The next type of classification that we are going to see is on the basis of the hybridization of the carbon on which the halogen is attached. Next classification is based upon compounds containing carbon and halogen bonds where that carbon is sp3 hybridized. So the first one comes as allylic halide. So let me draw a structure for you. These two carbons are actually having double bond and this carbon contains an halogen. ठीक है, तो allylic halides are the halides where the carbon next to the double bonded carbon contains an halogen. That is allylic halide. So this was your primary allylic halide. Sorry, let me draw the second one. The second one could be like this. Okay, the double bond present between these two carbon and this carbon is surrounded by two different carbons. So this is your secondary allylic halide. Let me draw a tertiary allylic halide for you. This one is your tertiary allylic halide because this carbon is being surrounded by three different carbons. Okay, one more allylic halide could be like this. ठीक है ना, this was your tertiary allylic halide and this was again your secondary allylic halide. ठीक है ना, because this carbon is being surrounded by two different carbons here and here. ठीक. Next one is your benzylic halide. So what is benzylic halide? The halide which is attached with the benzylic carbon.
This is your benzylic carbon and this is having an halide. ठीक है ना? This one is your primary benzylic halide. Let me draw the secondary benzylic halide. This is your secondary benzylic halide, and tertiary benzylic halide would be like this. This one is your secondary and that is your tertiary allylic halide. ठीक है ना? The next classification is based upon the compound that contains carbon and halogen bond and that carbon is sp2 hybridized. So the first one comes is vinylic halide. So vinylic halide is, suppose you have CH2 double bond CHCl. यहाँ पे जो हैलोजन होता है वो ठीक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ा होता है, एलाइलिक की तरह नहीं। एलाइलिक में क्या होता था कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखूं, this is one more example. Next example I can write okay, so these are your vinylic halides, ये सारे vinylic halide हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा एराइल हेलाइड, जिसको हम हेलोरेन्स के नाम से भी जानते हैं। जब इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो इसमें भी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यानी ये क्या है, ये एरोमेटिक हेलाइड था। ठीक है, एरोमेटिक हेलाइड होगा। एरोमेटिक हेलाइड में जितने भी कार्बन होते हैं वो सब क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अगर आपने लेट से यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, या आपने एक दूसरा सब्सटेंस लिया, टू क्लोरोटॉलुइन ले लिया आपने, ठीक है, आइडोबेंजीन लेट से आपने ले लिया, आइडोबेंजीन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कुड बी 4-आइडोटॉलुइन ले लिया, ठीक है। These are your aryl halide. Every carbon is sp2 hybridized and that halogen is attached with this sp2 hybridized carbon, ठीक है ना। So this was all about the classification of haloalkanes and specifically for haloarenes also, ठीक है। Next we are going to discuss about their preparation. But before going to the preparation part, I want you to solve a very basic question. That is, draw all the possible isomers of C5H11Br. So whenever we actually try to draw the isomer, first we try to calculate its degree of unsaturation. Okay. I want you to pause this video right here and try to draw all the possible isomers. Okay. And just do let me know in the comment box how many possible isomers you have drawn. So to calculate degree of unsaturation, what we do, this molecular formula actually resembles like alkanes, CnH2n plus 2. This looks like, because we consider this halogen as an hydrogen. This halogen is being substituted at the place of hydrogen. So this is alkane. So we all know that in case of alkane, the degree of unsaturation is 0 because there is no ring, no double bond. ठीक है ना? तो possibly what we can draw the first structure. This is your first structure, 1-bromopentane. अब नाम साथ में लिखते चलिएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। 1-bromopentane, इसी का पॉसिबल पोजीशन आइसोमर होगा हमारा। This is your 2-bromopentane. This is 2-bromopentane. This was 1-bromopentane, first one. The third could be 3-bromopentane.
Third one would be 3-bromopentane. एंड फोर्थ वन, अभी पेंटेन का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब चूंकि अब हम इस ब्रोमीन को अगर हम इस प्लेस पे लेके आएंगे तो फिर ये 2-ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम जरा ब्यूटेन में कुछ पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक बार हमने Br यहां लगाया और इसको यहां लगा दिया, तो दिस कुड बी 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रक्चर में थोड़ा इसको यहां से रब कर दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो समझने में। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। हमने ब्रोमीन को तो यही रहने दिया, बट कार्बन का सब्स्टिट्यूशन यहां कर दिया। दिस इज 1-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। सिक्स पॉसिबल स्ट्रक्चर वुड बी, एक काम करता हूं मैं, इस कार्बन को और इस ब्रोमीन को मैं एक ही जगह पे लगाता हूं, तो दिस इज 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ओके। सेवेंथ पॉसिबल स्ट्रक्चर, मैं काम करता हूं, Br को यहां लगा देता हूं और कार्बन को यहां लगा देता हूं। दिस इज 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। अब मैं इनकी अगर पोजीशन इंटरचेंज भी करूंगा तो भी बात वही हो जाएगी, तो आप पोजीशन इंटरचेंज मत करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 कार्बन के पॉसिबल आइसोमर्स तो बन गए, ठीक है। अब कुछ और भी बन सकता है, लेट्स थिंक, क्या 3 कार्बन पे कुछ बनेगा? तो 8th स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, 1, 2, 3, मैं ब्रोमीन को यहां पे लगा देता हूं और 2 कार्बन में यहां पे जोड़ देता हूं, ठीक है। तो दिस इज 1-ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1-ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक तो ये बन गया हमारा। कुछ और भी बन सकता है, अगर मैं ब्रोमीन की प्लेस चेंज करूं, नहीं अब नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर योर पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। वेरी गुड। So let's discuss the preparation of haloalkane. The very first method is halogenation. तो हैलोजिनेशन एल्केन्स का भी होता है और एल्कीन्स का भी होता है। तो पहले हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक एल्केन जो होता है वो एक हैलोजन मॉलिक्यूल से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करता है और हमको एल्किल हैलाइड देता है। बट इस रिएक्शन में एक आपके लिए एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि इस रिएक्शन के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एक हमें प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं एक रियल एग्जांपल की, आई एम टेकिंग CH4, तो दिस CH4 is reacting with Cl2 in presence of sunlight H nu, that will give you CH3Cl। यहां से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और जो वो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे क्लोरीन से बॉन्ड बना करके HCl बना करके बाहर हो गया। बट ये रिएक्शन यहीं पे टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये फर्दर एक और Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H nu और ये आपको एक HCl और बाहर निकाल के देगा, एक सब्स्टिट्यूशन और होगा और CH2Cl2 देगा। फिर फर्दर ये Cl2 से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H nu, ये फिर HCl बाहर करेगा और आपको क्लोरोफॉर्म देगा CHCl3 और ये फिर एक बार Cl2 से रिएक्ट करेगा, एक बार और HCl बाहर कर देगा एंड दैट विल गिव यू CCl4। अब ये रिएक्शन यहां पे आके टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या थी कि अगर आपको सपोज करिए यहीं पे ये रिएक्शन को टर्मिनेट कराना था, आपको ये वाला हैलाइड चाहिए था, तो ये यहां पे टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। या तो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में लो, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अगर आप 1 मोल भी लेते हो, 1 मोल Cl2 पे अगर आप यूज करते हो दैट इज अवोगाद्रो नंबर 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फीजिबल ही नहीं है। तो एक तो इसका ये ड्रॉबैक है। अगर आप सपोज करिए
आपने एक लेट से ये ले लिया, प्रोपेन ले लिया, ठीक है ना, CH3 CH2 CH3, and you want it to let it react with Cl2 in presence of H nu. तो भाई अब यहां तो 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? तो ये 2 टाइप के आपको प्रोडक्ट देता है। एक तो आपको ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड देगा, CH3 CH2 CH2 Cl, एक तो ये देगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको सेकेंडरी हैलाइड, CH3 CH, यहां पे लग जाएगा Cl और CH3, जिसमें ये जो सेकेंडरी हैलाइड बना है हमारा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये रिएक्शन, अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो ये रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब सेकेंडरी रेडिकल बना होगा तो सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, ठीक है ना, सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो क्या होगा, प्राइमरी वाला जो होगा हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट? अभी हम एक एल्कीन का भी एग्जांपल लेते हैं, एल्कीन का भी हैलोजिनेशन कराते हैं तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेट्स से अगर आपने एक एल्कीन लिया, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसका रिएक्शन लेट्स से आपने करा दिया HCl से, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो तो एज पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल क्या होगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा CH3 CH Cl और CH3। ओके, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, एक कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने ये ले लिया और हमने इसका रिएक्शन कराया HBr से, ठीक, तो ये हमको क्या देगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो यहां था यहां, और यहीं पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेट से ये रिएक्शन HB मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कराया है तो उस केस में देखते क्या प्रोडक्ट मिलेगा। लेट से आपने यही प्रोपेन ही ले लिया, ठीक है, प्रोपीन लिया आपने, this is going to react with HBr in presence of H nu, or you can say in presence of H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने ले लिया, तो ये आपको प्राइमरी हैलाइड देगा एज ए मेजर प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 Br, ये आपको प्राइमरी हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे यहां पे भी मिल जाएगा, यहीं पे Br लग जाएगा आपका, ठीक है ना। So this is what exactly happens in preparation of haloalkane from alkene and from alkane from both ends. ऐसे ही alkane की preparation में एक reaction और है, suppose an alkane R of H, it is reacting with sulfuryl chloride SO2Cl2, ठीक है, in presence of H nu, in presence of H nu, or you can say hydrogen peroxide H2O2. So that will give you R of Cl plus HCl and plus SO2, ठीक है। ये भी एक अच्छा मेथड है रिएक्शन का, ये भी एक अच्छा मेथड है प्रिपरेशन का, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब आपके पास एक ऐसा रिएक्शन कुछ हो, आपके पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और आपको इसका रिएक्शन कराना है Br2 से, बट कंडीशन क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड मैंने लगाया है ये डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होना चाहिए, या ये डबल बॉन्ड की प्लेस नहीं शिफ्ट होनी चाहिए, बस हैलोजन का एडिशन हो जाए कहीं पे। तो उस केस में आप जो यूज करेंगे रिएजेंट, दैट विल बी NBS। NBS इज
N-bromosaccinamide, NBS stands for N-bromosaccinamide। तो ये आपको जो प्रोडक्ट देगा वो देगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में कराइएगा, HNu, या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका चल पड़ेगा। इसमें आपको डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता है। ये रिएक्शन बहुत यूजफुल होता है इस पर्पस के लिए। एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास ये है एंड यू वांट इट टू रिएक्ट विथ Br2, तो आप ले लीजिए इसकी जगह पे NBS। ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और जहां पे था उसके एक कार्बन छोड़ के Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस NBS स्टैंड्स फॉर N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ओके, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये NBS होता है। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, नो वरी। So next method of preparation is from alcohol, and in alcohol what exactly happens, R of OH is reacting with HCl and that too concentrated HCl हम यूज करते हैं in presence of anhydrous ZnCl2 that gives R of X plus of H2। ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है। सीन क्या है कि concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 this is collectively called Lucas reagent। Lucas reagent। अल्कोहल्स में हम ये रिएक्शन एक बार फिर से पढ़ेंगे, लुकास टेस्ट के नाम से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं बच्चा लोग, प्राइमरी अल्कोहल्स, ये वाला रिएक्शन बहुत स्लो देते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि 45 टू 60 मिनट्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। 45 टू 60 मिनट्स यानी 45 मिनट से लेकर के 1 आवर के बीच में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। कुछ कुछ बुक्स में 30 मिनट्स में लिखा हुआ, बट ठीक है, 1 आवर मैक्सिमम आप मान लीजिए ये कंप्लीट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन 5 टू 10 मिनट्स में दे देते हैं, कंप्लीट हो जाता है ये रिएक्शन। और टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन 2 टू 5 मिनट्स में दे देते हैं, मतलब बहुत इमीडिएटली देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बुकिश लैंग्वेज, तो इट इज रिटन एज कि when primary alcohol reacts with Lucas reagent, it gives a turbidity after a very long time, and secondary alcohol gives turbidity in between 5 to 10 minutes, and tertiary alcohol gives turbidity immediately. So this term turbidity means cloudiness or the milkiness in the test tube in which you are doing this experiment. So this cloudiness is actually because of the formation of this RX। आप जब इसको टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे होंगे ना, तो आपको टेस्ट ट्यूब में हल्का सा थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है ना, वो इस RX के फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी जरा हम देखते हैं, एक मैकेनिज्म के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया ऐसा, ठीक है ना, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, ये पहले रिएक्ट करेगा ZnCl2 से। ZnCl2 एक लेविस एसिड है, and as per the definition the Lewis acids are actually electron deficients। तो क्या होगा, ये तुरंत अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, तुरंत फटाफट अटैक करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिच एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, एक तो ये O इसके साथ H और इसके साथ ZnCl2 लग जाएगा, ठीक है।
अभी HCl पिक्चर में नहीं आया है। जब HCl आएगा तो HCl क्या करेगा, H प्लस Cl माइनस देगा। अच्छा, चूंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो HCl ने Cl माइनस दिया वो क्या करेगा, वो इस पूरी स्पीशीज को रिप्लेस कर देगा और यहीं पे आके चुपचाप लग जाएगा, ठीक है। यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ दैट इज SN2 मैकेनिज्म। अब ये SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या है, इस पे मैंने एक अलग से अपना लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दिस लिंक। और अगर कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आई विल बी टीचिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म अगेन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन्स, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप ये जानो कि ये सिर्फ SN2 मैकेनिज्म से हुआ। अगर मैं इसको SN1 से करने की कोशिश करता भी, मान लो एक बार को मैं कोशिश करता, मैं कुछ ऐसे से लिखता कि बच्चा ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ये रहा इसके ऊपर का लोन पेयर, और बेटा ये HCl था, HCl ने आपको H प्लस दिया, प्रोटोनेट कराएगा ये, ठीक है। और बेटा इसने ये देखिए ये फॉर्म किया OH2, और जब ये OH2 निकला माइनस ऑफ H2O तो इसने एक कार्बोकेटायन जनरेट कर दिया। अब ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन बना। अब प्राइमरी कार्बोकेटायन रूम टेम्परेचर पे ही स्टेबल नहीं होता है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा SN1 मैकेनिज्म से, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है SN1 मैकेनिज्म से, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए हम SN2 मैकेनिज्म ही प्रेफर करेंगे, ठीक है, पक्की बात। अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो, मान लीजिए कुछ ऐसा सा अल्कोहल हो, चलिए हमने इसको सेकेंडरी बना दिया, इसके पास वही लोन पेयर, ठीक, इसने ZnCl2 से रिएक्ट किया, ठीक, तो बिल्कुल जैसा अभी हमने पहले किया था, इसके साथ H, यहाँ पे ZnCl2 हो गया बच्चा लोग, ठीक है। और HCl का जो Cl माइनस था उसने अटैक किया, और उसने अटैक करके यहाँ पे Cl बना दिया, ठीक है। चूंकि हुआ क्या था, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया और जब ये सब कुछ निकला, चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लिया होगा, ये ऑक्सीजन सब कुछ यहां से तोड़ ताड़ के निकल गया होगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन थोड़ा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मैकेनिज्म यूज हुआ वो SN1 मैकेनिज्म यूज हुआ। सेकेंडरी के केस में हम SN1 मैकेनिज्म लिख देते हैं, ठीक है, SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया है तो SN1 मैकेनिज्म हम बोलेंगे। अच्छा, जो ZnCl2 का रोल है इसमें वो ये है कि वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करा दे, ब्रेक करा करके कोई एक कैटायन यहाँ पे फॉर्म करवा दे, बस सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो ZnCl2 का काम यहाँ पे यही है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल जब आप लेते हैं, सपोज आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, ये टर्शरी अल्कोहल आपने ले लिया, तो इसके साथ आपको ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ HCl ही काफी है। अब HCl करेगा, ये प्रोटोनेट करेगा, H प्लस देगा इसको, और जैसे ही H प्लस देगा तो ये OH2 फॉर्म कर लेंगे, मतलब अब यहां से वाटर निकलने वाला होगा, यहां से वाटर निकला, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ पे, और जैसे टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा तो Cl माइनस अपने आप आकर के यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये बन गया आपका टर्शरी अल्कोहल। तो ये जो टर्शरी वाला रिएक्शन था ये इमीडिएटली हुआ, ये तुरंत हुआ, क्विक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन ही ज्यादा स्टेबल है। तो इफ आई टॉक अबाउट द रिलेटिव not relative, if I talk about the reactivity of different halogens in context of this Lucas reagent, तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे तेज रिएक्ट करेगा टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये इसका ऑर्डर होगा अल्कोहल, ठीक है। तो थोड़े से भी हम और प्रिपरेशन के रिएक्शन देखते हैं कि क्या है। अल्कोहल से ही अगर हमको हेलो एल्केन बनाना तो दूसरे भी रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल R of OH is reacting with NaBr plus H2SO4, that gives you RBr plus NaHSO4 and plus H2। ये जनरल रिएक्शन हो सकता है। एक बार को शायद हम ये भी सोचें कि
इतना बड़ा ये रिएजेंट लिखने की क्या जरूरत थी? इसकी जगह हम या तो सिंपली NaBr से रिएक्शन करा देते, हम शायद सीधे NaBr से रिएक्शन करा देते। लेट्स से अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल होता कुछ इस तरह का, OH ये था, इसका हमने डायरेक्टली रिएक्शन कराया NaBr से, हमने H2SO4 नहीं यूज किया, तो शायद इसको कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट हमें दे देना चाहिए था, ठीक है, प्लस ऑफ NaBr। बट ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर Br ने OH को रिप्लेस किया और OH माइनस निकला, तो OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते जो आपसे भी ज्यादा तगड़ा हो, राइट? अगर आपको किसी को किसी जगह से रिप्लेस करना है तो अपने से आप कम वाले को रिप्लेस कर सकते हैं, ज्यादा वाले को नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा वाला अगर रिप्लेस हो भी जाएगा तो वो वापस से अटैक करेगा, ठीक है? तो वापस आ सकता है OH माइनस इस केस में, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लिख सकते हम। हाँ, अगर इसकी जगह हम HBr लिख दें, मान लीजिए यही OH था, इसकी जगह पे हमने HBr यूज कर लिया, तो HBr क्या करेगा? H प्लस देगा, प्रोटोनेट करेगा इसको, तो जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? OH2 फॉर्म कर लेगा। OH2 यानी कि यहां पे Br माइनस आएगा अभी, और OH2 बना है तो पॉजिटिव चार्ज भी ऑक्सीजन के पास होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, SN2 मैकेनिज्म अगर याद आ रहा हो तो ये Br2 लग गया यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है? ये फॉर्मेशन हो सकता है, ये सही है, ठीक है? ऐसे अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लें, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल ले लें, लेट से हमने ले लिया ये, अब इसका हमने रिएक्शन कराया, HBr से करा दिया। हाँ, ध्यान रखिएगा इस केस में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मत यूज करिएगा थर्ड टर्शरी के केस में, क्योंकि क्या होगा कि वो फिर इट विल बी एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फिर वो वाटर यहां से निकालने की कोशिश करने लगेगा। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज करिएगा, आप सिर्फ चाहें तो KBr यूज कर लीजिए या HBr यूज कर लीजिए, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो जब ये यूज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, और सीधा Br का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाएगा और ये आपको मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है? और ये कैसे होगा? SN1 मैकेनिज्म से होगा, ठीक है ना? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज वे मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी वन, ठीक? तो ये काम आपका हो सकता है। एक ये मेथड हो गया प्रिपरेशन का। तो हमने क्लोरो एल्कीन और ब्रोमो एल्कीन की प्रिपरेशन तो देख ली है, अभी तक हमने आइडो एल्कीन और फ्लोरो एल्कीन नहीं देखा, तो फ्लोरो वाला तो अभी हम बहुत बाद में देखेंगे, आइडो वाला देख लेते हैं कि आइडो एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे होती है अल्कोहल से। तो इफ यू आर टेकिंग R of OH and that R of OH is reacting with HI, और ये भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 57% HI should be there, concentrated 57% HI should be there. So this will be giving you R of I plus of H2O, ये रिएक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है ना? अब इस मेथड से अगर मैं बोलूं कि क्या R of OH HF से रिएक्ट करके RF दे सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि HF जो है वो मिनरल एसिड में लीस्ट रिएक्टिव है। अगर मैं इसका ऑर्डर भी लिखूं तो HF इज लीस्ट रिएक्टिव, देन HCl, देन HBr, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो है HI। ये इसका ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर में ये आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल could be like alcohol is reacting with phosphorus trihalide PX3 and phosphorus pentahalide PX5. But before going further, let me just make 2-3 things very clear, that in case of PX3 we'll commonly use PCl3, okay, because PBr3 and
PI3, they are very unstable, they are very unstable, ठीक है ना। तो PCl3 तक तो काम चल जाता है। इन केस ऑफ PX5, इसमें मोस्ट कॉमनली हम यूज करेंगे PCl5 बिकॉज PBr5 एंड PI5 दे बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए प्रोडक्ट तो हमको दोनों ही केसेस में सेम मिलना। अगर हम आप PX3 यूज कर रहे हैं तो यू विल गेट R of X. If you are using PX5 then again you will get R of X. So let me write a real example for you guys. Suppose you are taking a real alcohol, 3 molecule of C2H5OH plus PCl3, let's say, followed by heat. So you will get C2H5Cl plus H3PO3, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें आपने 3 मॉलिक्यूल्स OH के भी लिए थे, ठीक है ना। एक तो ये रिएक्शन होगा। अगर आप PCl5 यूज कर रहे हैं तो C2H5OH plus PCl5 in presence of heat, that will give you C2H5Cl plus POCl3 and plus HCl। दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट जो मिला वो R of Cl मिला। इन दोनों से भी ऊपर हम एक और रिएक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्जन्स प्रोसेस और डार्जन्स मेथड, डार्जन्स रिएक्शन। वो इन दोनों से भी सुपीरियर रिएक्शन है। तो क्या है जरा वो भी देखते हैं। डार्जन मेथड में क्या होता है कि दिस R of OH is reacting with thionyl chloride SOCl2 followed by heat, that gives you R of Cl plus SO2 plus HCl। ये दोनों ही गैसियस स्टेट में है। तो होता क्या है कि जो भी हमको RCl मिलता है वो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है, क्योंकि ये गैसेस जो है वो कंटेनर से एस्केप कर जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैं एक रियल एग्जांपल लिखूं अगर, तो मैं लिखूंगा C2H5OH plus thionyl chloride SOCl2 in presence of heat, that will give you C2H5Cl plus SO2 gas plus HCl gas। तो चूंकि हमको इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिला वो बहुत प्योर प्रोडक्ट मिला, इसी वजह से PX3 और PX5 के कंपैरिजन में हम ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन और डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, दिस इज कॉल्ड डार्जन्स प्रोसेस। इसमें भी एक चीज क्या है, थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप SOCl2 ही रिएक्ट कराइएगा, ठीक है। चलिए, वंडरफुल। Next method of preparation is from Hunsdiecker reaction. So in this reaction what happens, the silver salt of carboxylic acid reacts with Br2 or Cl2 in presence of CCl4, that gives you alkyl chloride or alkyl bromide. So let me write its general reaction. The general reaction is RC double bond O Ag plus Br2 in presence of CCl4, that will give you R of Br plus CO2 and plus AgBr. So as you can see that this particular reaction is going to degrade the number of carbon, ठीक है ना। अगर मैं R की जगह पे CH3 यूज कर लेता तो this would have been silver acetate। मैं एक रियल एग्जांपल ही लिख लेता हूं। तो ये रहा सिल्वर एसिटेट आपका CH3C double bond O OAG, and that is going to react with Br2 in presence of CCl4। तो ये आपको देगा CH3Br plus CO2 and plus AgBr। ये आपको प्रोडक्ट मिला। तो इनिशियली आपने 2 कार्बन का
एसिडिक सॉल्ट लिया था और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर डिग्रेड हो गए। तो this particular reaction is called Hunz-Dieker reaction. It is one of the very important reaction. Please do go through this reaction. So next method of preparation of haloalkane is from alkyl halide itself. Named reaction है Frankenstein reaction बोलते हैं, या इसको आप halide exchange method भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि this R of X is going to react with NaI in presence of dry acetone medium, dry acetone, ये आपको R of I plus NaX दे देते हैं, ठीक है। Here X, this X could be क्लोरीन और ब्रोमीन, क्योंकि अभी तक हमने हैलो एल्केन की प्रिपरेशन में आइडो एल्केन का सिर्फ एक ही रिएक्शन देखा है, तो शायद इतना फीजिबल नहीं है वो रिएक्शन होना, तो इस रिएक्शन से आप वो आइडो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन, Finkelstein, sorry, let me erase it, Finkelstein, Frankenstein reaction, ठीक है। If there would be any spelling mistake, please forgive me for that, ठीक है ना, I'm very bad in learning spellings and all, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्वार्ट रिएक्शन, इसमें क्या, अब हमने फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन देखनी है, तो दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, अभी वो भी देखते हैं। तो दिस ट्वाइस ऑफ R of X is going to react with Hg2F2. This is mercurous fluoride. This is mercurous fluoride. ये क्या करेगा, this will give you twice of Rf plus Hg2x2, ये आपको दे देगा। This is called Swartz reaction, S-W-A-R-T-S, Swartz reaction, ठीक है। जैसे अगर यहां पे x की जगह पे क्या हो सकता है, here at the place of x could be Cl और Br, आई नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो these are the reactions for the preparation of alkyl halides. Okay, now I'm going to give you 2-3 questions based on them, ठीक है, and after then this lecture will be done. Just give me a minute. Guys, I have few questions for you. 4 questions हैं, जल्दी से इनका आंसर अपनी बुक पे, अपनी कॉपी पे कहीं से भी ढूंढ करके अपनी कॉपी पे लिखिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। I'll be waiting for your comments. Pause this video right now, right here. Try to solve them. जो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, उनके लिए ये मैंने पहला रिएक्शन बताया था, इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा हमको वो ये मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, बट ऐसा नहीं है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये सब्स्टिट्यूशन वहीं पे होगा जहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो, तो प्राइमरी से ज्यादा तो ये सेकेंडरी वाला स्टेबल था, तो यहाँ पे हमने Br का सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। NBS एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां पे एलाइलिक कार्बन दिखे, मतलब ये डबल बॉन्ड को तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है। यहीं पे Br लगा दीजिए और डबल बॉन्ड जहां पे था वहां डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ये रहा एलाइलिक कार्बन, यहीं पे Br का सब्स्टिट्यूशन इस जगह पे हो जाएगा, ठीक। SOCl2 फिनॉल के केस, ये फिनाइलिक है, फिनाइलिक हैलाइड बनाएगा ये, तो ये रही आपकी फिनाइलिक रिंग और यहाँ पे लग जाएगा आपका Cl, ठीक है ना। एक ये प्रिपरेशन हो गई आप। नेक्स्ट, ये भी आपको मैंने सबसे पहले वाले में बताया था इस प्रिपरेशन को, तो ये कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा बट जो हैलोजन लगेगा वो यहां लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन को प्रेफर करेगा ये लगना। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है
ये रिएक्शंस मैंने कैसे लिखे हैं या आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल मी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, and I hope you would have liked this video. So please like, share and subscribe to my channel and refer to most of your friends so that they can also get benefit from creating this video. And I'll be creating more and more interesting content for you guys. So I would be requiring your support. Please. Thank you very much and all the very best to you. Bye bye.